बैक टू द वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है अ डे इन द लाइफ ऑफ अ गुरुकुल बॉय। इससे पहले भी हम लोगों ने गुरुकुल की एक वीडियो देखी थी और वो भी बिल्कुल। बहुत अच्छी थी, लेकिन वो आइलम मायापुर मायापुर चैनल की थी। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो वीडियो, देखते हैं कि इसमें क्या है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम पर लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर कर, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। I know it's been a long time since I last spoke to you. I've been thinking about you a lot lately. And I guess I didn't have much to say until now. By the way, it's me, Purushottam. There's Radisham. He's 15 now, so he gets to ride the elephant. Mashai says that I could also ride up there too, but my legs are too short, so I might fall off. No one has ever fallen off the elephant before. But I don't want to be the first one. There's Baba, of course. After we left Florida, he moved us here to Mayapur because he thought this would be the best place for us to grow up. I was too young to remember much about America. All I really remember is my life here in Mayapur. I remember when I first came here, I thought this was just some nice place with cows, palm trees, and the Ganga. But slowly, I realized that this is a very special place. Now, just feels like home. So many people visit Mayapur from all over the world for the deities, for the kirtans, for the festivals, and especially for learning about Krishna consciousness. I am also learning how to be a good devotee of Krishna, so that someday you can be proud of me. Maybe you already know this, but last year I received Upanayana. That means I'm now learning puja and yajna. Not for the big deities, of course. Not yet, at least. In school, I've made so many friends from all over the world. I am now a vice group leader, which means that I take care of all these small boys. Like, for example, there's Vasudev. He's 7. He's from Israel. Here's Marisham. He's 8. And he's from Russia. 9. Same thing. Also in my service group is Sahadev. He likes to work in the backfield. He's 14. And he's from Ecuador. Colombia. Oh, right, Colombia. And there's the head boy who takes care of all of us, Sri Prabhu, from Colombia. Or was it Ecuador? Don't you have some service to be doing, Peru? I know. I'm almost done. This is Vedanta from Mumbai. This is Naren from Dubai. He's the kitchen in charge. That means if breakfast is late, like it is today, then it's his No fault. thanks to you, Puro. I'm busy. Little Baldev is from Taiwan. He's really good at kirtan. Big Baldev Mashai is from Latvia. Gopal is from New Zealand. And this is Mukunda. He was born in Mayapur. All the other boys say he's a pure devotee, that he talks to Tulsi Maharani and she actually talks back to him. I don't know if that's true. That's Radisham, of course. You might be happy to know that he really loves Sanskrit. He's one of the best in the whole school. Also, I wanted to introduce you to my best friend, Baba. She's really sweet and beautiful. And she weighs about 400 kilos. That's her. Yeah. And you should also meet Raju. Before his operation, he was really aggressive and tried to bite people. No, not him. That's Ramdas. I was talking about the horse. I don't ride him though. It's mostly Guranga who does.
Sometimes I wonder, if the whole world comes to Mayapur to study your books, and if studying is so important, then why do I have to spend so much time shoveling cow dung? Adidev Mahashai was explaining why in class the other day. He said that we are not controllers and enjoyers, we are servants. Devotional service is what makes the soul happy. Every soul's duty is to serve Krishna. Service trains us to be humble, which is essential for bhakti. We're brahmacharis, so we serve our teachers, the school, and the whole ISKCON family. That includes Mother Cow and Father Bull. But even they have to serve. Even though it's tiring, in the end of the day, it's worth it. If Krishna is satisfied, then we automatically feel satisfied. And when we all cooperate together in this spirit of service, the result is really nice. But today is actually less work than normal, because it's Sunday, free day. We get to play, go for archery, and meet our parents. Today is different though, because my father is taking us somewhere really exciting. Somewhere he had promised to take us for a very long time. He said one of the directors of the TUVT, Raj Bilaswaru, is taking us on a special tour of the new temple. I've never been there before. I can't wait. ये जो ISKCON बनता था, हाँ। वो तो देखा भी था project, है ना? काफी बड़ी जगह थी ना। Dear Srila Prabhupada, because I'm young and foolish, I never really appreciated what it is you gave us. I want to thank you so much for starting ISKCON Mayapur. Because of Mayapur, Krishna consciousness will last for a long time in this world, because everyone will come here to learn about it. You started 108 temples all over the world.
Today, you have over 700 centers worldwide. But now, here comes the most important center of them all, the Mayapur Chandrodaya Mandir. After the TOVP is finished, we'll be getting over 50 million visitors a year. Can you imagine all those people doing kirtan, taking prasadam and reading our books? So, Srila Prabhupada, I am trying to take up many responsibilities so I can make you happy. Please bless me so that in the future I can do something that will make you much more proud of ISKCON. But anyways, I have to sleep now because it's getting late and tomorrow is another big day. Thank you very, very much for your love and for showing me the path back to God. I can't wait for tomorrow. हीरा कृष्णदास अग्नि पन्ना बलराम अनंता देरिया तेरे नाम गुजर गए जगन्नाथ कीर्तन दास इससे पहले भी जब हमने आई लव मायापुर की वीडियो देखी थी तो उसमें भी मैंने तारीफ की थी, जिस तरह जो है एक वहाँ पे रहन सहन का तरीक़ेकार था कि इस्कॉन के अंदर जो एक जगह है वहाँ पे जिस तरह रहा जाता है, जितनी सिंपल लाइफ है वो बहुत अच्छी है। वेल, आज की जो वीडियो है वो उससे मुझे काफी डिफरेंट लगी, क्योंकि एक जो स्टाइल था बनाने का वीडियो का वो बहुत ही अच्छा था और इस तरह की वीडियो थी कि आपको अंदर तक खुशी होती है। मैं वीडियो देख रही थी और मैं ये बात सोच रही थी कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं और जो जहां जहां से ताल्लुक रखते हैं, कोई ऐसे कंट्री से नहीं है कि जो कि मतलब डेवलप्ड नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा बच्चे हम कहेंगे कि ऐसे कंट्री से जो कि हम कहते हैं तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं, बिल्कुल उन कंट्री से बिलोंग करते हैं। लेकिन फिर दिमाग में ये चीज आती है कि आखिर उनके पेरेंट्स को यहाँ पर ही आना क्यों ख्याल आया कि हम लोग यहाँ पर सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से। इट मीन्स कहीं ना कहीं पर उनको कुछ चीजें जो है वो कनेक्ट कर पा रही हैं, उनको समझ आ रही है उन चीजों की, उनको लॉजिक, उनकी क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है, जिसकी वजह से वो लोग इस मिट्टी से जुड़ गए हैं। यार समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप अपनी जिंदगी में ना सुकून को तलाश करते हैं। अगर हम बात करें ना यूएस की या जिस मुल्कों का बीच में नाम लिया गया, वो नो डाउट ऐसे मुल्क है जो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता है, वहां पर हर तरह की सहूलत है। लेकिन क्या नाम लेते हैं, वो मुल्क ऐसे हैं कि वहां पे आप मशीन का जो है ना एक गरारी कह ले, एक हिस्सा बने हुए हैं कि कब सुबह होती है कब शाम होती है आपको पता नहीं चलता। इवन कि हमारा भाई शहर लाहौर की बात करें तो इतना डेवलप नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी बात कीजिए कब सुबह होती है कब शाम होती है पता नहीं चलता। तो समटाइम्स आपका दिल करता है कि आप जो है ना किसी ऐसी जगह पर जाएं कि वहां पे आपको सुकून मिले, वहां पे आपको ना अंदर तक शांति मिले। तो आप जब मूव करते हैं ऐसी जगह पर तो नो डाउट आप उस जगह से, आप उस मट्टी से
कनेक्ट हो जाते हैं, आपका दिल करता है कि मैं यहीं पे रह जाऊं। देखो मौसम अगर हम कहीं पर मूव करते हैं ना, दिस इज नॉट इजी, क्योंकि ये कोई 1-2 दिन के लिए हम लोग अपनी मट्टी को नहीं छोड़ के कहीं और एडजस्ट होते। अब देखो जैसे मौजूद ने बोला कि अमेरिका में जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल डिफरेंट है, बट हम लोगों को यहाँ पे रहने वाले लोगों को बड़ी अच्छी लगती है। हम लोग चाहते हैं हम यहाँ से वहां चले जाए, वहां पर वहां की हमारी जो लाइफ है वो अच्छी हो जाए, लेकिन वहां के लोग वहां की सहूलतें छोड़ के, सब चीजें छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं। इट मीन्स कुछ ना कुछ तो खास यहाँ पर है, वो चीज, वो एक सुकून है, क्योंकि आप अपना घर छोड़ के कभी भी आसानी के साथ कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकते जब तक आपको इंटरनली सेटिस्फेक्शन ना मिले और आप कहीं पर आपको बहुत अंदर से ये एक आवाज है कि हाँ ये बेस्ट प्लेस है मेरे लिए और मैं यहाँ पर सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ या गुजार सकती हूँ। और उसके साथ साथ जो लाइफस्टाइल है मुझे वो बहुत अच्छा लगा, और कुछ लाइंस बीच में मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगी जो कि आप कह सकते हैं कि दिल को छू लेने वाली थी, जिसमें ये था कि हम लोग कंट्रोलर नहीं है, हम लोग सर्वेंट है, और जो सर्वेंट होते हैं मतलब जो हम लोग सर्विस देते हैं उससे हमें खुशी मिलती है। और मतलब ये जो चीजें होती हैं आप में एक आपको हम्बल बनाती हैं जब आप सर्विस देते हो। तो मुझे ये लाइंस बड़ी खूबसूरत लगी, क्योंकि जो बेसिक पर्पस होता है, मुझे लगता है कि आप जब किसी को मानते हो या उसको उसकी हम कहेंगे कि उसके डिवोटी रहते हो, तो मुझे लगता है आपको आपके अंदर जब आप दूसरा का दर्द फील करते हैं या आप अपनी सर्विसेज देते हैं, ह्यूमन के काम आते हैं और आप में ह्यूमैनिटी रहती है, तो मुझे लगता है कि बेस्ट चीज और बेस्ट प्रैक्टिस लाइफ में वही चीजें रहती हैं। इसमें कोई शक नहीं। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी पीछे से बात स्टार्ट करना चाहूंगा। मैं बेसिकली उस टाइम ये कहना चाह रहा था कि हम लोग जैसे शहरों में रहते हैं, ठीक है ना, समटाइम्स हम अपने आप से बहुत ज्यादा फेड अप हो जाते हैं, ठीक है ना, तो हम जो है फिर सुकून के मुतलाशी लोग होते हैं, फिर ऐसी जगह जाते हैं जहां पर जो है हम उस जगह से कनेक्शन फील कर सके, सुकून फील कर सके, हमारा दिमाग रिलैक्स हो सके। हम वो जो एक फॉर एग्जांपल जब हम कश्मीर गए थे, ठीक है ना, वहां पे हालांकि मोबाइल सर्विस नहीं थी, लेकिन आप वहां पे एक अच्छा फील कर रहे थे, आपको सुकून था, आप यहाँ से मेंटली जो आपको शहर की गहमा गहमी होती है ना, आप उससे दूर हो जाते हैं, आपको मजा आता है। और दूसरी में यहाँ पे जो आपने बात की डिवोशनल की, नो डाउट जब आप किसी चीज में डूब जाते हैं आपको बहुत ज्यादा जो है अच्छा फील होता है। जिंदगी में मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जिनके यानी कि जिनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू होता है ना, वो एक अलग हवाओं में उड़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी जिंदगी वो जो है ना किसी को इंसान समझते ही नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर साइड मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास ढेर सारी दौलत है, ठीक है ना, लेकिन वो इतने डाउन टू अर्थ लोग होते हैं ना कि आप जब उनके बीच में बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होता है। जिंदगी में जो है ना आपके आजिजी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, डाउन टू अर्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जितने डाउन टू अर्थ होंगे ना आप उतने अच्छे तरीके से अपने सारे काम जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे। बेशक वो आप किसी को हेल्प आउट कर रहे हो, बेशक आप जो है वो डिवोटी हो, आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से फिर से मौजूम की बात का ही जवाब देना चाहूंगी। मैं बिल्कुल मौजूम की बात को समझ पाई हूँ, बट मैं ये बताना चाह रही थी कि एक टेम्पररी सुकून लेने में और एक परमानेंट सुकून लेने में बहुत फर्क होता है। उसमें आपकी आदतें और आपका हम कहिए कि कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, बहुत समझदारी और बहुत मैच्योरिटी की जरूरत होती है। जैसे मौजूद ने कश्मीर की एग्जांपल दी, देखो वहां पर नो डाउट मोबाइल सर्विस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, लेकिन हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। लेकिन वो एक टेम्पररी थी। हम लोग अगर कहें कि हम लोग हमेशा के लिए वहां पर रह जाएं तो हमारा दिल नहीं लगेगा वहां पर, क्योंकि हम लोग आदी हो चुके हैं इस लाइफ की। देखें तो अगर मैं ये बात कह रही कि सहूलतों को छोड़कर इस तरह की लाइफ अपनाना एक डिफिकल्ट है ऐसे बंदे के लिए कि जब आप एक ऐसे कंट्री में रहते हो जहां जो कि बहुत डेवलप हो, जहां पर बहुत ज्यादा सहूलतें हो, और फिर आप दोबारा से एक ऐसी जगह अपने लिए चूज करें जहां पर आप बिल्कुल एक हम कहें कि ऐसे तरीके से जो कि हम लोग, मैं ये नहीं बात बोलती कि ये एक अच्छा तरीका नहीं, अगर देखा जाए तो एक्चुअल में जिंदगी गुजारने का तरीका सही है ही यही है। लेकिन क्योंकि हम लोगों की अपब्रिंगिंग अब शुरू से इस तरह की हो चुकी हुई है कि हम लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, हम नहीं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं जो उस चीज को प्रैक्टिस भी करते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। और बहुत अच्छी चीज मुझे जो इस वीडियो में ये लगी भी, और वो ये कि ना बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो भी उसमें हम लोगों को देखने को मिली, जैसे कि आर्चरी थी उसमें, फिर उसके बाद हॉर्स राइडिंग थी,
और भी जो हम लोगों ने वीडियो देखी कि किस तरीके से जो मैनेजमेंट है वो बच्चों के हवाले की गई, तो ये चीजें बच्चों को जिस तरीके से सिखाई जाती है, लीडरशिप क्वालिटी, बिल्कुल बड़े होने तक उनको मतलब उनकी पर्सनालिटी हम कहेंगे कि बहुत ही एक हाँ मतलब अच्छी एक पर्सनालिटी उनकी बन जाती है। और यहाँ पर नो डाउट जो इसका श्रेय है वो प्रभुपाद जी को भी जाता है, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी की भी हम लोगों ने वीडियो देखी थी। आई थिंक डॉक्टर विवेक बिंद्रा की हम लोगों ने वीडियो देखी थी कि किस तरह से उन्होंने इतनी कठिनाइयां देखने के बाद और इस वीडियो में बताया कि 108 टेम्पल्स उन्होंने स्टार्ट किए थे और अब इतने ज्यादा टेम्पल जो इतने सारे भक्त जो हैं वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। और बीच में जो टेम्पल मौजम दिखाया गया है, इस्कॉन टेम्पल जो भी बन रहा है बहुत खूबसूरत है। मुझे बहुत अच्छा, जब हम लोगों ने 3D में भी उसको देखा था मुझे बहुत ही खूबसूरत उसका कलर लगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं हो। और उसका जो अभी हमने देखा ना, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन अंदर से काफी बड़ा है, यानी कि काफी ह्यूज स्पेस आपको जो है वहाँ पे देखने को मिल रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये लगी, कुछ चीजों की समझ आ रही थी, कुछ की नहीं आ रही थी, तो वो आप हमें जरूर बताइएगा। और वो ये कि जब से वो इस्कॉन टेम्पल के अंदर जाते हैं और फिर उसके बाद कृष्णा जी तो नजर आते, लिटिल कृष्णा जी नजर आते हैं, फिर एक जो मतलब हम लोगों को मूर्ति नजर आती है वो मुझे नहीं समझ में आई कि वो किन की थी। फिर मौजम जब ऊपर वो देखते हैं तो डोम में आई थिंक वो सृष्टि होती है वो। क्योंकि कृष्णा जी की अगर बात की जाए तो उन्होंने वो जब महाभारत में देखते हैं तो वहां पर जब वो अपना अवतार दिखाते हैं तो वहां पर उनके जब मुंह खोलते हैं तो उसमें सृष्टि नजर आती है। तो मे बी ये वही वाला मतलब हम लोगों को समझ में आया। फिर उसके अलावा एक और हम लोगों ने देखा था जो पेंटिंग सी थी जिसमें आई थिंक मे बी राधा जी थी कृष्णा जी के साथ, राधे श्याम। हाँ, फिर उसके बाद एक और भी थी लेकिन उसमें मुझे नहीं समझ में आया कि उसमें कुछ सखियां थी और वो वाली मुझे नहीं समझ में आई, तो वो भी आप हमें जरूर बताइएगा। एंड ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, मतलब इसको देखकर ना वो ना मूड अच्छा हो जाता है, वो वाली एक आपको हमेशा से वाइब आती है इस तरह की वीडियो देखकर। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियो होती हैं आप उनके साथ कनेक्शन जब फील करते हो ना तो आपको अच्छा लगता है। अभी बल्कि लास्ट डेज में मैं इस बात को बिल्कुल एडमिट करूंगी कि मतलब मैं अपनी बहन के साथ भी डिस्कस कर रही थी, मैं उनको बोलती थी कि जितना आप सनातन धर्म को पढ़ते हो आप में बड़ी आपको ना क्यूरियोसिटी होती है, आप इतना ही इन्वॉल्व होते हो, इंटरेस्टिंग लगता है कि अब और क्या, क्योंकि जानने के लिए बहुत कुछ है। और सीरियसली मैं खुद यहाँ पर पाकिस्तान में भी देखती हूँ कि लोग जो हैं वो इस साइड पर आते जा रहे हैं, यानी कि आयुर्वेदिक से रिलेटेड चीजें जो हैं उनको फॉलो करना शुरू हो गए हैं। हालांकि ये एक लोगों ने नो डाउट बिजनेस बनाया हुआ है और इसको एक एलीट क्लास जो है वो ही इसको अभी तक अफोर्ड कर पाती है। क्योंकि पिछले दिनों में मैंने कोशिश की कि मैं अपना एक मेन्यू बनवाती हूँ कि जहाँ पर मुझे जो मतलब सात्विक फूड का एक मील मुझे प्रॉपर प्लान मिल जाए। बट जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया क्योंकि मैं मौसम को भी बताना चाहूंगी कि 3 तरह के मील होते हैं ना, एक तामसिक होता है जो कि हम खाते हैं, मतलब नॉन वेज जो खाते हैं लोग वो, और एक राजविक आज मुझे शर्म आ रही है और एक सात्विक फूड होता है। तो सात्विक फूड जो होता है वो मतलब उसमें काफी ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, वो बहुत ज्यादा पका हुआ नहीं होता, बॉयल और मसाले वगैरह नहीं होते उसमें। तो आई वाज लाइक कि मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई क्या इसके हालात हैं कि क्या आप लोग चार्ज करते हो। खैर इसने मुझे पहले डिटेल में बताया क्योंकि मैं खुद भी पढ़ती रहती हूँ, इसलिए मुझे काफी चीजों के बारे में थोड़ा पता भी होता है। तो मैंने फिर उनसे पूछा भाई कि क्या पैकेज क्या आप दे रहे हैं, एंड यू नो व्हाट ही सेड, आप मतलब गेस करो कि मैं नहीं गेस कर रहा क्योंकि आज आप इतना नॉलेज बांट रही हैं, मुझे शर्म आ रही है कि मैं क्या बोलूं। नहीं, इसमें शर्म वाली क्या बात है, जब आपको मतलब बहुत सारी चीजें जो मौसम भी मुझे बताता है, मुझे भी अच्छा लगता है जब मौसम से मुझे जानने को मिलता है। अच्छा खैर चलो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, वो 48,000 पर मंथ चार्ज करें जिसमें वो 3 टाइम्स मील आपको मतलब, लेकिन मतलब कुक्ड मील वो आपको देंगे मतलब पोर्शन में। मैंने कहा भाई 48,000 में खाना पका भाई तो मुझे प्रॉपर एक मील है मैं खुद ही घर में बना लूं। तो देखो इस तरह के मतलब, बट इन शॉर्ट कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं ये चीजें जरूर अपने अराउंड देखी कि किस तरीके से योगा की तरफ लोग आ रहे हैं। फिर आपको जिस तरीके से अगर हम लोग देखें अभी मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर दीजिए, मैं जहाँ मैं जिम जाता हूँ ना वहाँ पे भी एक लड़का आता है सिर्फ योगा करने। हाँ तो मैंने देखा है कि लोग अब बहुत ज्यादा इस साइड पर आ रहे हैं। तो बेसिकली मुझे अच्छा भी लगता है जब मुझे पता होता है कि हाँ मुझे ऑलरेडी इन चीजों के बारे में पता है, और इस चीज का श्रेय नो डाउट आप सबको जाता है क्योंकि
इससे पहले हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं था। तो मुझे अच्छा ये भी लगता है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूट्स की तरफ आ रहे हैं, चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन एक दिन वो मानेंगे जरूर कि हाँ भाई कि ये चीज़ें यही हैं। अभी तो खैर अंग्रेज में फौरन से उसको कोई ना कोई नाम दे देते हैं और वो एक हमें मॉडर्न टच मिल जाता है। बट ये कि मुझे लगता है कि इवेंचुअली लोग इस चीज को समझेंगे। बिल्कुल। वेल गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी आप में से सात्विक फूड कौन कौन खाता है? और अगर मैंने किसी भी फूड का नेम गलत ले लिया है, तम्स फूड होता है या तामस? तम्स होता है, तम्स फूड और राजविक होता है। मुझे नहीं पता इसलिए मैंने कुछ कहूंगा। वही सात्विक फूड कौन कौन खाता है। और इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।